After months of ethnic unrest in Manipur, there is a de-escalation in violence. However, in the beginning of the year, there have been fresh flare-up. So the big question which remains is when peace is going to return to Manipur. To discuss on this, we are joined exclusively on NDTV network by Manipur Chief Minister, Mr. N Biren Singh. Mr. Biren Singh, thanks a lot for giving us time. It has been a very crucial 6-7 months for you, your government, as well as people of Manipur. The kind of ethnic unrest that the state has witnessed, and the fallout of it, close to 200 people dead, about 60,000 people displaced, loss of loss of life, property, and even in the beginning of the year, we did see escalation, at least in Moreh, which is a border town. When do you see peace returning to Manipur, and what are the steps your government and center has taken to ensure that peace can return to Manipur? Actually, during these 8 months, I think only incident means, unwanted incident took place only in some days, not in whole 8 months. Almost 3-4 months were kept peaceful and silent, but in the Bisme, sometimes on the eve of the New Year, there was between the state security force and the militants. So it is not between the two communities. Now the dimension is becoming state force versus the militant. So I think the casualties of the civilian will be reduced. And in the meantime, restoring of peace is, in my opinion, is very positive. In the last 8 months, almost 4-5 months was very peaceful, counting the days and the incident. And like the previous 3rd or 4th May, not that kind of mass casualty, mass fighting was not taken place. And the people from all angles, in the hillside also, in the valley side also, the people are becoming conscious, and they are trying themselves to restore peace in the state. Now from the government side also, we are trying our best with the guidance of the Honorable Union Home Minister Amit Shah ji, almost in the both side has been talk is on, and discussion is on through some proper channel. I cannot disclose everything, and I think just during a short period, total normalcy will be restored in the state of Manipur, and for this we have to work hard together, both communities, along with the state government, and I am also doing my best with the guidance of the senior leader from Delhi, and I am trying to restore peace. And in the meantime, some misunderstanding within the camps of refugee camps, not relief camps. Some people did not feel well. Who will feel well? Good, because they were staying in their own home comfortably, but after shifting to the relief camp, they are not having private life. This and that, very unfortunate. So seeing all these things, we are going to have some housing scheme type temporarily. Those who cannot return immediately to their previous places, like Chorchanpur, Moreh, or wherever it is not possible immediately to go back. But those who are able to possibility of resettling there in their own villages, government has already provided money for construction of houses, and within these 10 days also we are also going to provide rupees 1 lakh each to all and every displaced person.
so that their day-to-day expenditure can be used. So you are very hopeful. What you are trying to tell us is that there is a roadmap that you are working with the help of center. But the Kuki-Zo civil society groups have time and again came up with statements clearly stating that their core demand of a separate administration, they are very steadfast on this. So when they have a they are not moving from that demand. So how do you see a negotiation with them if they are sticking to their demand? Alright, demand is demand. Demand is different, and solution will be different. Many undergrounds examples demand sovereignty, this and that, and now just they have come and joined the mainstream. Talk is on. So the civil society group of our brothers Kuki, they are not like militant. They will come. They are a normal, voluntary organization. They will understand. They will understand, and one day, definitely, very soon, I believe, they will come to the negotiating tables. Illegal arms अभी भी available हैं. इसको किस तरह से आप recover कर सकते हो? देखिए, ये जो इंसिडेंट हुआ है, जो स्ट्राइक हुआ है, वो एज ऑफ सडन था, बहुत सडन था, कोई प्रिपरेशन नहीं था. तो उस टाइम पे अपने बचाव के लिए जो भी है कर लिया. लेकिन वो जो लीगली किया वो अलग बात है, इलीगली भी काफ़ी किया. तो इलीगली जो किया है, वो जो वेपन वगैरह स्नेच किया है, वो किया है. हमने अभी उसको बहुत साइड में कॉम्बरिंग ऑपरेशन करके काफ़ी हथियार वापस आ गया है, रिकवर किया है, काफ़ी एमुनेशन हथियार, और अभी भी चालू है. कल परसों भी जो एटलीस्ट 6-7 मिसकरेंट विद वेपन्स पकड़ा है. तो ये चालू रखेंगे, जारी रखेंगे, और थोड़ा टाइम तो लगेंगे क्योंकि टेंस है थोड़ा, क्योंकि हम लोग पुलिस लोग रिकवरी करने जाएंगे तो कोई सोशल ऑर्गेनाइजेशन विलेजर इसको डिस्टर्ब करता है, क्योंकि आउट ऑफ फियर. इसमें कोई मेरे को ये लगता नहीं है कि जानबूझ के हथियार को हम लोग रखे, वो ऐसा ही नहीं लगता मेरे को. तो आउट ऑफ फियर कभी अटैक आ सकता है, कोई आ सकता है, तो कौन क्या करेंगे. नाउ आई वाज आल्सो अपीलिंग टू द पीपल ऑफ द स्टेट. अभी तो सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स काफ़ी आ गया है बाहर से. अभी हमने डिप्लॉय स्ट्रेटेजिक एरिया में डिप्लॉय किया हुआ है. स्टेट पुलिस कमांडो, स्टेट पुलिस फोर्स डिप्लॉय किया हुआ है. अभी तो चिंता का बात नहीं है. अभी तो द स्टेट फोर्स एंड सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्सेस विल डिफेंड एंड एवरीथिंग. तो ऐसे करके हम अभी स्लोली कन्विंस कर रहा है, और लोग मान भी रहा है, क्योंकि वी आर रिड्यूसिंग द क्राइम. लास्ट कंपेयरिंग विद द लास्ट मे 3 से तो अभी तो बहुत काफ़ी महीने में 1-2 बार हुआ है, तो काफ़ी रिड्यूस हुआ है. तो आई होप पीपल की आउट ऑफ फियर से जो हो रहा है उसको अपने स्लोली भी देना शुरू कर रहा है, करेंगे उसको. कुछ घटनाएं ऐसी घटी है कि मिस्क्रियंट्स ने सिक्योरिटी फोर्सेस का यूनिफॉर्म यूज़ किया है, तो उसमें कुछ नए एसओपीज जिस तरह से सिक्योरिटी फोर्सेस ग्राउंड में काम करेंगे, ताकि ये जो मिस्क्रियंट्स है वो सिक्योरिटी फोर्सेस का यूनिफॉर्म या फिर उनके व्हीकल्स उनके टाइप के व्हीकल्स यूज़ नहीं कर पाए. देखो, मिसकरेंट होता है. क्या ड्रेस लगाना, कोट लगाना, ये लगाना, ये हम लोग से बात नहीं चलता. तो अपने लॉ अबाइडिंग सिटीजन और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी का हम लोग का काम है. जो इलीगली यूनिफॉर्म लगा के जाता है उसको पकड़ के रखना, और बिकॉज पुलिस यूनिफॉर्म है, लोगों को तो अलाउड नहीं है. लेकिन क्या करूँगे, हिल में तो आर्मी भी वही यूनिफॉर्म लगाता है, और शू वाला क्योंकि शू मिलिटेंट भी वही यूनिफॉर्म लगाता है. ऐसा ही तो है ही है. और अभी रिसेंटली जो शू में जो आया है वो लोग का यूनिफॉर्म भी वही कैमोफ्लेक्स है. तो ऐसा ही कन्फ्यूजन तो है. लेकिन पुलिस यूनिफॉर्म को जो ज़्यादा बात कर रहा है वो अभी तो इतना हमको नहीं दिखाई दिया. पहले शुरू में होगा, लेकिन अभी इतना वो नहीं है.
Another thing, Mr. Chief Minister, is that what I have followed particularly in this entire spell of crisis that Manipur has gone through, time and again you have pointed out that there have been people who have come from other side of the border from Myanmar who have been involved in violent activities. So how do you see this issue getting resolved, given the fact that you have proposed center that the border needs to be fenced, which is with Myanmar? However, there are also people on both sides of the border who have historical linkages. You have other state chief ministers in the northeast who share borders with Myanmar, who have their reservation in terms of the fencing of the border. How do you see this Myanmar border dynamics actually affecting the entire Manipur situation? देखो, ये मणिपुर में अभी जो हो रहा है ना, इसको अगर आई एम नॉट ब्लेमिंग द सेंट्रल गवर्नमेंट, पहले वाला अगर जो 1947 और 49 जो मर्ज हुआ उसी टाइम से थोड़ा सा ध्यान देता होता ना, ये 398 किलोमीटर लंबा है और वहाँ पे जो कम्युनिटी है और यहाँ पे जो कम्युनिटी है, मतलब एक ही ट्राइब है, लैंग्वेज एक ही है, खाना पीना एक ही, तो उसी तरह उसी टाइम पे अगर फेंसिंग होता था और पास सिस्टम करता था तो इतना इन्फ्लक्स नहीं होता। लेकिन हम लोग ने उसी टाइम पे तो मणिपुर को सेंट्रल उसी टाइम का सरकार ने हम लोग को ऐसा ही छोड़ दिया लगता है मेरे को। और बॉर्डर में अभी अपने सिक्योरिटी नहीं है, बॉर्डर में बॉर्डर गार्डिंग के लिए असम राइफल है, लेकिन असम राइफल वो दोनों काम कर रहा है, काउंटर इंसर्जेंसी भी कर रहा है और बॉर्डर गार्डिंग भी कर रहा है। तो बॉर्डर से 10-20 किलोमीटर आके अंदर में बैठा है और इसके ऊपर में एक तो फ्री मूवमेंट रिजिम है, 25 किलोमीटर 16, 17, 20 किलोमीटर फ्री में जा सकता है विदाउट एनी चेकिंग। तो सोच लो, सेम ट्राइब है, सेम कम्युनिटी है, सेम लैंग्वेज है, सेम कल्चर है, तो मतलब नो वन थिंक अबाउट द इंडिजिनस पीपल ऑफ मणिपुर, नो वन। सिर्फ मोदी जी का सरकार आने के बाद में नॉर्थ ईस्ट में किया है। अभी गृह मंत्री अमित शाह जी की नेतृत्व में विजिल शुरू हुआ है, विजिल किया है, चेक किया है। नहीं तो पहले तो जो पुराना गवर्नमेंट था उस टाइम पे पूरा मणिपुर को, आई डोंट वांट टू मेंशन अदर स्टेट, अपने मणिपुर का बात कर रहा हूँ, मणिपुर को तो पूरा छोड़ के रखा है इसे। इसी वजह से अभी जो भी हो रहा है ना वही हो रहा है। तो इसलिए हम ये बॉर्डर फेंसिंग इज ए मस्ट और एफएमआर को, फ्री मूवमेंट रिजिम को कैंसिल करना बहुत ज़रूरी है। हाँ, आओ वीसा यूज करके जो भी है, एक जो इंटरनेशनल नॉर्म होता है ना, दूसरा कंट्री में कैसे जाना है वो पास लेके जाओ, वापस जाओ, आओ वापस जाओ, वो कर सकता है। लेकिन अभी तो वो नहीं है, कोई चेकिंग सिस्टम ही नहीं है। Center, in all likelihood, is going to pass a notification for cancellation of the FMR, जो कि सालों से चल रहा था। आपने अभी कहा कि एफएमआर को कैंसिल करना बहुत ज़रूरी है ये सिचुएशन में मणिपुर में। क्या इस बात पे एक लार्जर कॉन्सेंसस बनने की ज़रूरत है नॉर्थ ईस्ट में, बाकी स्टेट्स के साथ भी और सेंटर के साथ में? क्योंकि बहुत सारे स्टेट के फिर रिलेटेड हैं और बॉर्डर शेयर करते हैं म्यांमार के साथ, और म्यांमार में भी अभी जो परिस्थिति बन रही है, जिस तरह से वहाँ पे जो मिलिट्री है और इसके साथ जो रेजिस्टेंस फोर्सेस हैं उनकी जो लड़ाई चल रही है, उसका भी एक स्पिल ओवर इफेक्ट हमने देखा है मिज़ोरम में, मणिपुर में भी बहुत सारे लोग आए हैं। तो इसमें क्या आप सोचते हैं कि एफएमआर जैसे आप डिमांड कर रहे हैं कि उसको कैंसिल किया जाए, शायद सेंटर एक नोटिफिकेशन जारी करेगी, बट डू यू थिंक दैट देयर इज़ अ नीड फॉर अ लार्जर कॉन्सेंसस इन द नॉर्थ ईस्ट? देखो, जस्ट हर एक स्टेट जो है नॉर्थ ईस्ट में, ये भारत का स्टेट में है, भारत का स्टेट है और भारत का
कॉन्स्टिट्यूशन का अंदर में जो स्टेट चला रहा है, हम भी आई एम ए बाउंडेड सिटीजन ऑफ इंडिया, एक भारत के एक स्टेट का चीफ मिनिस्टर है, सो भारत सरकार का और कॉन्स्टिट्यूशन ने जो दिया है उसी को हम लोग वो हैव टू ओबे, क्योंकि इंटरनेशनल बॉर्डर को जो भारत सरकार और नाइबरिंग कंट्री के साथ किया हुआ है उसको आई कैन नॉट एज ए सीएम आई कैन नॉट ब्रेक इट अप। हाँ, प्रपोज कर सकता है इतना है, इतना में जाइए, री सर्वे कीजिए, वो कीजिए, वो अलग बात है, लेकिन आई कैन नॉट डिनाई व्हाट द ऑलरेडी एग्जिस्टेड जो लाइन जो है उससे ये करेगा वो करेगा। तो फ्रॉम माई साइड आई एम नॉट द अथॉरिटी, बट जो थोड़ा छोटा मोटा इधर में 1 किलोमीटर आगे या आधा किलोमीटर आगे, 100 किलोमीटर, 100 मीटर, 200 मीटर आगे पीछे, इसके लिए आई कैन आस्क टू रिक्वेस्ट टू द सेंटर कि आगे थोड़ा जाके फेंसिंग कीजिए, वो कीजिए और एफएमआर को ऐसा कीजिए, लेकिन वी कैन नॉट डिनाई whatever the central government has taken or is going to take in relation with the border as well as the FMR. How do you plan to reach out to the Kukizo society, the Kukizo people? You have time and again appealed, but as of now, have you received any positive response from them? And what can be the possible steps in terms of bringing back the coexistence that we saw for years in Manipur? देखिए, हमने ये बोलेगा तो कोई ये सिविल सोसाइटी वाले बोलेंगे बात नहीं हो रहा है। हाँ, फॉर्मली नहीं हो रहा है, फॉर्मली अभी तक शुरू नहीं किया, लेकिन इनफॉर्मली हमने काफ़ी अपने कुकी भाई लोग से, बहन लोग से काफ़ी बात की। दे वांट पीस एज द मिलिट्री वंस, एज द गवर्नमेंट वंस। तो इसमें थोड़ा सा रह गया कि जो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन का वो लोग का लेवल में जो शुरू करना है, वो आई थिंक यूनियन होम मिनिस्टर इज ट्राइंग वेरी हार्ड। एमएलए लोग को मिलाना, अपने तरफ से तो काफ़ी अंदर में तो काफ़ी मिला रहा है, लेकिन आई कैन नॉट से किससे मिला है, क्या मिला है, वो लोग भी डिनाई करेंगे कि नहीं मिला, बीरेन ने झूठ बोला, ये तो बोलेगा। लेकिन मेरा एज ए मिनिस्टर ऑफ मणिपुर, मेरा कोशिश जारी रखा है कि कुकी लोग से थ्रू नागा बोदी की नागा दोस्त लोग की तरफ से आप थोड़ा बात करो, और कुकी ब्रदर लोग से हम जो टेलीफोन नंबर है जो मिल सकता है, मिल के बात करके, तो आई थिंक general people want peace now. One last thing, the opposition is trying to make the Manipur issue for the 2024 general elections. राहुल गांधी की जो दूसरी यात्रा है, जिसको वो न्याय यात्रा कहते हैं, वो मणिपुर से शुरू कर रहे हैं। वो ये कहना चाहते हैं कि मणिपुर के लोगों को जस्टिस दिलाने के लिए वो वहाँ से शुरू कर रहे हैं। आपका रिएक्शन क्या है? देखिए, राहुल गांधी जी का और कांग्रेस का बारे में तो मणिपुर में शुरू करेगा और डिफिट में जा रहे हैं वो लोग। 2024 का तो वो लोग हारेगा ही हारेगा, क्योंकि मणिपुर में कांग्रेस को इतना दिल में है ना, इतना रिवेंज के लिए चुप के रखा है। क्योंकि ये सब जो हुआ ना 2008 में, ये चिदम्बरम जी आए थे होम मिनिस्टर, उसने तो रिकॉग्नाइज किया है, अप्रूव किया है, ये सिहा पाओ, थांगलेन पाओ, द जेरार एगर चेयरमैन को साइन कराया। कांग्रेस का टाइम था, कोई देखा नहीं, कुछ देखा नहीं, कहाँ का आदमी है, कहाँ से आया है, क्या है, कुछ देखा नहीं। तो दे आर द क्रिएटर, और मणिपुर का अभी हमेशा जो है वो लोग ने क्रिएट किया है, और वो लोग आके क्या इशू बनाएंगे, वो हम दिखाएंगे, वो लोग को इलेक्शन में दिखाएंगे कैसे है। अभी भी दिखा देना, इलेक्शन कांग्रेस का कितना है, सिर्फ 4-5 ही रह गया। 15-20 साल का, 30 साल का रिजिम में थे, अभी सिर्फ 4-5 में आ गया। क्यों? पीपल डजंट वांट देम, क्योंकि वो लोग अपीसमेंट पॉलिसी ज़्यादा करता है। दे नेवर थॉट अबाउट द
betterment of the, the indigenous people, the Northeast, particularly in Manipur. Indigenous people, Naga, Meitei, or apne old cookies. We are having 34 tribes recognized. वो लोग के लिए ख्याल तो करो, नहीं किया था. एपीसमेंट पॉलिसी करके वोट मिलने का काम भी अच्छा हुआ था. तब से तो ये पॉलिटिकल इम्बैलेंस, डेमोग्राफिक इम्बैलेंस सब कुछ हो रहा है. So there you are, Manipur Chief Minister Mr. N Biren Singh clearly saying that he is very hopeful for peace to return back to the state and that it will be sustained in the state. However, he feels that there should be more manning of the international border with Myanmar, and he favors that the free movement regime should be revised so that there is a check in terms of illegal immigration into Manipur. In Guwahati with Madhav, Ratndeep Chaudhary for NDTV.